Hello students, hope you all are fine. Today we are going to do a poem of 8th class. The poem is True Growth, composed by Ben Jonson. So students, poem True Growth is a very short poem. It consists of only 10 lines, but it conveys a deep meaning. चाहे कविता है, पोएम जी है बहुत छोटी जी है, लेकिन इट हैज़ डीप मीनिंग कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग जो कन्वे करना चाहता है पोएट दैट इज़ वेरी बिग, बहुत ही ਵੱਡਾ मैसेज है. ट्रू ग्रोथ, ट्रू मीन्स सच्चा, ग्रोथ मीन्स ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ. सो द पोएट वांट्स टू कन्वे वट इज़ ट्रू ग्रोथ कि सही अर्थां दे विच ग्रोथ जिहड़ी है वो किहड़ी हुंदी है. So before we start our poem, let's have a look at two pictures. So this first picture, it is of an oak tree. एक oak tree है which lives for 300 years, जिहड़ा कि 300 साल तक जिंदा रहता है. But it is of no use for anyone, लेकिन वो किसी दे भी काम नहीं आता है. Now look at this second picture. This picture is of a lily flower. This lily flower lives only for a day. सिर्फ एक दिन जिंदा रहता है, but it spreads beauty and fragrance all around. चाहे उसकी लाइफ बिल्कुल छोटी जही है, लेकिन वो सारियां नू खुशियां दिंदा है. So in the poem also, the poet has compared the life of an oak tree and a lily flower. And through this comparison, the poet has tried to convey that a short life of beauty and perfection is far better than a long but useless life. कि एक छोटी जी लाइफ जिहड़ी कि फुल ऑफ ब्यूटी है, फुल ऑफ परफेक्शन है, तो वो लाइफ जिहड़ी है उस लॉन्ग लाइफ नालों ज़्यादा बेटर है जिहड़ी कि यूजलैस है, जिहड़ी किसी दे काम नहीं आती है. So now let's start the poem. First of all, we will do recitation of the poem. So it is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long as an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and died at night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. Now let's understand the poem. It is not growing like a tree in bulk. Bulk means size, big size. Doth make man better be. So the poet is saying that to grow like a tree in size, कि एक ट्री ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ it doesn't make man better, ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ. ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ. ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Or standing long as an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and sere. तो या फिर एक ओक ट्री की तरह इन्ने साल जिंदा रहना. ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, जिमें कि मैं तुहानूं पहला ही दसिया है एक ओक ट्री जिहड़ा है वो 300 साल तक जिंदा रह सकता है. कि उसकी तरह एक लंबी जिंदगी जीन नाल की है एक मनुख की जिंदगी बेहतर नहीं बनती. टू फॉल अ लॉग, लॉग हुंदा लकड़ी का लट्ठा. एट लास्ट ड्राई, ड्राई मीनस सुक जाना, सुक्या होया. बाल्ड, बाल्ड हेयर मीनस लीफलैस, बिना पत्तियां तो. सीयर मीनस ड्राई या मुरझाया होया. सो एक ओक ट्री जिहड़ा है वो 300 साल जिंदा रहता है, तो उस तो बाद जिहड़ा है एक लकड़ी के लट्ठे की तरह सुक के बिना पत्तियां तो ते मुरझा के वो हेठां डिग पैंदा है, तो वो किसी दे भी काम नहीं आता है. तो कह रहे इस तरह की जिंदगी जीना जिहड़ा है इट इज़ नॉट good, and perfection does not lie in long life. A lily of a day is fairer far in May. Now the poet is talking of the
लिली फ्लावर विच लिव्स ओनली फॉर अ डे। अ लिली ऑफ अ डे कह रहे वो लिली फ्लावर जिहड़ा कि सिर्फ एक दिन जिंदा रहिंदा है इज़ फेयरर फार इन मई, कि मई के महीने दे विच जदों खिलदा है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सोहना लगता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाइड एट नाइट, कि चाहे जिस दिन वो खिड़दा है तो उसी रात ही वो मर जाता है, मुरझा जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन वो केड़ा किस तरह का फुल है, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, खुशियाँ भरिया। इट बिकॉज इट स्प्रेड्स ब्यूटी एंड फ्रेगरेंस ऑल अराउंड, कि जदों खिड़दा है अपने आस पास कितनी सुंदरता बिखेर दिंदा है, कितनी सुगंधी बिखेर दिंदा है, तो देखण वाले नूं भी बहुत ही सोहना लगता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी and in short measures life may perfect be. So in the last two lines the poet wants to convey the central idea of the poem, which is in small proportions we just beauty see, कि असी छोटी छोटी चीज़ां दे विच भी सुंदरता नूं देख सकते हाँ। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, तो साडी लाइफ जिहड़ी है कि जरूरी नहीं है असी एक लंबी जिंदगी ही गुजारीए तां ही असी अपनी लाइफ नूं परफेक्ट बना सकते हाँ। असी छोटी जिंदगी दे विच भी चंगे काम करके, वधिया काम करके, दूसरियां दी मदद करके, दूसरियां दी जिंदगी दे विच खुशियां बिखेर के असी अपनी छोटी लाइफ नूं भी परफेक्ट बना सकते हाँ। उन्होंने भी असी फुल ऑफ ब्यूटी एंड फुल ऑफ परफेक्शन बना सकते हाँ। So the poet wants to convey that even a short life can be perfect and beautiful, कि छोटी जिंदगी जिहड़ी है वो भी वधिया हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। ऐ नहीं कि असी बहुत ज़्यादा साल असी जिंदा रहांगे तां ही असी अपनी लाइफ नूं परफेक्ट बना सकांगे। सो द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट टू बी जज्ड फ्रॉम द ईयर्स लिव्ड बाय अ पर्सन, कि एक मनुख के जीवन का मुल जिहड़ा है इस गल तो नहीं पता लगता कि वो व्यक्ति किन्ने साल जिंदा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग लाइफ ही जीवे कि तां ही उसकी लाइफ परफेक्ट बन सकती है। इवन स्मॉल पीरियड्स ऑफ ग्रेटनेस, ग्लोरी, ब्यूटी एंड स्वीटनेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन मेक अ नोबल एंड परफेक्ट लाइफ, कि छोटे छोटे पल जिहड़े हैं जिंदगी के जीवन दे विच अगर असी उन्हों ही सुंदरता नाल भरपूर कर दिए, वधिया काम करिए, तो छोटी जी जिंदगी नूं भी असी अपनी बहुत शानदार ते परफेक्ट बना सकते हैं। So this was the explanation of the poem. Now let's do the rhyming words. So rhyming words are the words which have the same ending sound. Let's look for the rhyming pair of words in this poem. The first line, the last word of the first line, tree, it rhymes with the last word of the second line, that is B. So tree, B. Next is years, seer. So these are also rhyming words. Next, day, May, night, light, sea, bee. So these were the rhyming words. So that's all for today. Thank you so much.